بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ مراکشس مز تباہ کن بنیل 700 کھت زیادہ لوگ جاں بحق ہتواد زخمی ٹٹوارس مز کیا عمارت زمین بوز نئی دلی میں G20 اجلاس جاری کیان ملکن ہند سربراہ تو دویم مہمان موجود باہمی تو عالمی چیلنجن حوالے کتھن دل جموں کشمیر مز محکمہ بجلی ست وابستہ کئی ملازم انجمنوں طرف احتجاج انتظامیہ خلاف نعرہ بازی انصاف فراہم کرنے مظاہرینوں مانگ تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل مراکشس مز تمہ سات خوفناک منظر برو کن آمت یل ات زوردار بنیل آو یہ بنیل ین ست 700 کھت زیادہ لوگ جاں بحق تو ہتواد لوگ زخمی سپدنچ خبر برو کن آمز تت مسلسل بنیل دکہ ین ست لوکن مز خوف دہشت وچھن یل زن تباہ کن بنیل ین ست ہتواد عمارت ٹٹوارس مز کھنڈراتس مز تبدیل سپزمز میڈیا رپورٹن مز ون خطس مز یہ بچاؤ تو راحت کاری ہز کاروی شروع کرنے آمز تاہم امکان ملبہ ہٹاونس دوران ہیکن مزید لوکن ہز لاش برآمد سپدت یم ست مرن والن ہندس تعدادس مز اضافہ سپدن خدشہ بنیل شدت یہ 6.8 ون تچہ امچ گہرائی 14.5 کلومیٹر زیر زمین ون آمز بھارت یہ G20 اجلاس سربراہی یم وری کران تتہ نئی دلی مز 2 دہن تام جاری روزن ولس ات اجلاس مز مختلف ملکن ہند سربراہ تو مہمان شرکت کران یہ آج صبح پہ یہ اجلاس نئی دلی مز شروع سپد تتی اجلاس دوران نجی تو عالمی معاملن تو مسائلن حوالہ کتھن دل دن یہ پتمو 2 ہفتوں پہ اجلاس منعقد کرنس حوالہ دل سجاونہ آئی تو 100 کروڑ روپیہ ات پہ خرچ کرنا آو تتہ دل مز جائیں جائیں سیکورٹی ہز اضافی نفری تعینات کرنا آمد یل زن کیا وتہ عام لوکن ہند ین گھن باپت بند کرنے آمت یم کن یمن علاقن مز عام زندگی متاثر تہ وچھنہ آئی ازکہ گۄڈنِکے دۄہ اجلاس مز تمام ملکن ہندو سربراہو مہمانوں تو بھارتکیو ذمہ داروں طرف پنن خیالاتن ہند اظہار تہ کرنا آمد جی جیسے آپ نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں دیکھا امریکہ اور بھارت میں بہت بڑے پیمانے پر سہیوگ کر رہے ہیں جن میں سے کرٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے انفارمیشن کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی ہے ہم نے کچھ اعلان کیا جو انڈین الیکٹرانک وہیکل ٹرانزیشن کے بارے میں ہمارے DFC کی طرف سے $8 بلین دے دیں گے اور انڈین سرکار بھی اپنی طرف سے اتنا ہی پیسے دے دیں گے ہم اسٹوڈنٹ موبلٹی کے بارے میں الگ الگ پارٹنرشپس اناؤنس کیا جو جس کے تحت امریکہ اور انڈین اکیڈیمیا ایک ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. The 3 F's, food, fuel and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted. No one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, it should be a global one. Obviously, there are differing viewpoints and interests at play in regard to the various issues under discussion. However, we have been able to find common ground on all of them. As a result, we can justifiably state
that under Prime Minister Narendra Modi's guidance, the New Delhi summit has given clear directions for the growth and development of the global economy in the years ahead. We would be glad to respond to your question. JK Power Employees and Workers United Front तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसलन अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे मजबूर सपद एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसलन अंजरावनस हवाले गन संजीद कदम तुलन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन ये प्रोटेस्ट इसलिए आज यहाँ हो रहा है क्योंकि जो हमारी मांगी थी जो 2021 में या 20 में उन्होंने वादा किया था हमसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी यूनियन ने तो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज हम इस जैन के पावर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले हम सब जमा हो गए हैं। हमने अपनी मांगी रखी है 5 नाकद पे है वो, जिसमें हमने जो 5 मांगे जो है कि रेगुलराइजेशन ऑफ PDL TDL जो इन्होंने 2019 से टेबल के नीचे रखा है, उसके बाद जो हमने इनको बोला है कि रिलीज ऑफ वेजेस इन फेवर ऑफ अनपेड PDL एंड लेफ्ट ओवर वर्कर्स इन कश्मीर, जो कि यहाँ का तादाद है 850, जो कि जम्मू में 883 का हुआ और कश्मीर में इन्होंने पेंडिंग रहा है। और उसके बाद हमारे जीपी फंड का मसला जो पिछले 7-8 महीने से जो मुलाजिम है वो दर बदर वो बंद है, तकलीफ है उनको, तो और भी मसाइल है, जो प्रमोशन का मसाइल है हमारे क्लर्क्स स्टाफ का वो भी नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे परमानेंट मुलाजिम भाइयों को भी है वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको अब सबको पता है कि जो इस डिपार्टमेंट के बैकबोन है वो डिलीवरी है, जहां पर 2-3 परमानेंट मुलाजिम काम कर रहे हैं। अब वहां पर इन्होंने एक अनपेड या परमानेंट डिलीवरी को रखा है, बाकी वहां कोई दिखता नहीं है। आप ग्राउंड में देखिए, ग्रास लेवल पे आप देखिए काम कौन कर रहा है, काम कैसे हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट है ये अंधा है, ये अंधा हो गया है अपनी इस गुरूरी मनमानी में। ये चाहते हैं कि ये लोग सड़कों पे आए, ये हमें मजबूर ना करे कन्फ्रंटेशन के लिए। हमारी जो मांग है वो पूरा करिए तो ठीक है, नहीं तो हम सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। महकमे बिजली मज काम करने वाले ग्रेजुएट तो डिप्लोमा इंजीनियरों तरफ आज जमिस मज एहतजाज करना आमुत यथ मज एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आव यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद जायज मुतालबह पूरा करने यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि कई फिर मुतालबह महकम कन जिम्मेदारन तो LG इंतजामिया ताम वातन आय, ताहम इंतजामिया तरफ संजीदगी हुंद मुजाहिर करने यम किन तम मुश्किलन मज हेन आमद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमद तिहद मुतालबह पूरा करनस हवाले गसन कदम तुलन युद्ध जन महकमुक कामकार मुतासर सपदे। ये हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स सभी जो हमारे जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर्स और हमारे ग्राउंड पे जो मुलाजिम हैं, चाहे वो डेली वेजर्स से टेक्नीशियंस हो, सभी के अनरिजॉल्व मुद्दे जो एग्रीमेंट में डॉक्यूमेंट किए गए थे दिसंबर 2021 की पावर स्ट्राइक के बाद। आपको याद होगा 4 दिन की जो हड़ताल हुई थी उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके 4 बिंदु थे। उन 4 बिंदुओं पे आज तक काम नहीं हुआ। आज की डेट में 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कैडर में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। टेक्निकल कैडर्स में 4000 और क्लरिकल कैडर्स में भी मिला के 4000 वैकेंसीज नियरली खाली पड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट इस टाइम पे क्रचेस पे है। हम यही बात लगातार सरकार को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 60 डिविजन्स एक्सेंस के बिना पड़ी हुई हैं, 150 AWs नहीं है, जो ग्रीवेंसेस के लिए लोग आ रहे हैं सब डिविजन्स में, वहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं है। 350 से ज़्यादा जेईस की रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, जो कि खाली पोजीशंस पड़ी हैं। एक जेई के पास 21 फीडर है। आप बताइए किस तरीके से वो स्मार्ट मीटरिंग के इश्यूज, नॉर्मल रूटीन के ग्रीवेंसेस, ट्रांसफार्मर डैमेजेस सभी को कैसे एड्रेस करेंगे। हम यही बात चीफ सेक्रेटरी साहब से कहना चाहते हैं कि जो भी फाइल आपके पास जा रही है, आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन ये लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, लोगों की ग्रीवेंसेस नहीं एड्रेस हो पा रही हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आज जो सभी चीफ इंजीनियर्स ने, मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, सभी चीफ इंजीनियर्स ने, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने पूरा प्रोटेस्ट लीव पूरा फॉर्मेट में पूरा लिख के
प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को एड्रेस की है कि आज के दिन पूरे 24 घंटे के लिए जो है सारे जूनियर इंजीनियर्स तक और नीचे का टेक्निकल स्टाफ सभी जो है एक दिन की प्रोटेस्ट लीव पे होगा और ये गवर्नमेंट को एहसास कराएगा कि आप हमारे इश्यूज़ को लेके इतना कंप्लेसेंसी नहीं बरतिए और लगातार हमारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं लोग, इनके लिए आपको कमिटेड हैं, आप लोग एग्रीमेंटेड हैं और ग्राउंड पे आज हमें एक दिन के लिए आना पड़ा। अगर हमारी सरकार आज भी बात नहीं मानती है तो अगले 15 दिन के बाद 48 घंटे का जो प्रोग्राम जो है तैयारी में है उसकी, और उस टाइम पे भी काफ़ी दुश्वारियां लोगों को आ सकती हैं। आज भी लोगों को दुश्वारी ना आए, इसलिए हम पब्लिक से कहना चाहते हैं, ये हम पब्लिक के लिए भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज की डेट में जो हमारे रिजेंटमेंट है गवर्नमेंट से, जो हम कन्वे कर रही हैं अपने रिजेंटमेंट, उसका कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी एक फोकस है, क्योंकि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस एड्रेस ना होने का कारण ये भी है कि ग्राउंड पे मैन पावर नहीं है। मैन पावर को कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए आज चीफ इंजीनियर तक ने प्रोटेस्ट लीव दी है। यपर डोडस मज आज महकमे बिजली मज काम करने वाले ग्रेजुएट तो डिप्लोमा इंजीनियरों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि जायज़ मुतालबो पूरे करने हवाले कई फिर इंतजामिया ताम यह मामल वातन तव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसल अंजरावन मांग करना आमद। AEE हम सब लोग यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ ईगा 1 डे सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमसे प्रोमिस किए थे वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए। हमने गवर्नमेंट से, हमारी गाइडेंस काउंसिल ने, हमारे प्रेसिडेंट ने उनसे बात करने की कोशिश की। टेक्निकल एम्प्लॉइज़ जो फेडरेशन हमारी J&K की है, उनके बिहाफ पे यहाँ से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गेस्टेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ से जो कॉल हुई, हमारे जो कन्वेनियर J&K सचिन टिक्कू साहब हैं, उनने कॉल की है 24 आवर्स की, 24 घंटे की जो प्रोटेस्ट लीव पे जो पूरे हमारे मुलाजिम बैठे हैं, चीफ इंजीनियर से लेकर हमारे डेली विजिट तक इस वक्त प्रोटेस्ट लीव पे बैठे हैं। वो प्रोटेस्ट लीव इसलिए है इस वक्त, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं कि पीछे जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था आज से 3 महीने 4 महीने पहले, जहाँ पे हमको आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल किया जाएगा, मगर अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड पे कोई भी रेगुलाइजेशन नहीं हुई है। मैन पावर इस वक्त, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी मैन पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक लाइनमैन को जो हमारे स्टेशन है आगे नीड बेस के हवाले किए हुए, और एक नीड बेस के पास कम से कम 10-10, 20-20 स्टेशन चल रहे हैं। एक JE के पास 5-5, 10, 15 फीडर तक इस वक्त है। एक AEE के पास 2-2 सब डिवीजन, 3-3 सब डिवीजन का चार्जेस है हमारे। हपर कश्तवाड़स मज आज महकमे बिजली मज काम करने वाले ग्रेजुएट तो डिप्लोमा इंजीनियरों तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि जायज़ मुतालबो पूरे करने इंतजामिया मांग करने, ताहम इंतजामिया तरफ कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एक इंजीनियर जो है 3-3 सब डिविजन्स का चार्ज है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 2-2 डिविजन्स का चार्ज है। हम लोग लगभग 16 से 18 घंटे हम लोग खुद फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ये सिला दे रही है, ना हमारी रेगुलराइजेशन कहीं है, रिटायरमेंट के बाद मॉनेटरी बेनिफिट्स का नुकसान है। उसके बाद प्रमोशंस की फ़ाइल हमारी 8-8 महीने ऑफिस में, जैसे साहब ने बताया कि 7 दिन का उसमें शेड्यूल है, लेकिन 7 दिन का 8-8 महीने के बाद ओनली टू बी रिजेक्टेड अगेन। सो ये सारी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैन नॉट बी ए वन साइडेड अफेयर, इट हैज़ टू बी बोथ। इसमें ऐसा है कि पहले एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो बनी थी 2019 में, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे। उसके बाद 21 में जो स्ट्राइक हुई, उस वक्त भी कुछ गवर्नमेंट के साथ जो है वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई थी, कुछ कंडीशंस पर हुई थी। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी बल्कि धज्जियाँ उड़ा दी गई उन डिसीजंस की। अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त खाली इंजीनियरिंग विंग की नाज़रीन कोशिश खबरनाम जारी, इतने तिजारती वक्फ।